بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اقبال چودھری اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب پروگرام رپورٹ ٹائم کے ساتھ۔ اچھا ناظرین، آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ جو صورتحال کریٹ ہو چکی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پہلے تو انہوں نے کہا جی ہمارا پلان اے یہ ہوگا، پھر پلان بی یہ ہوگا۔ پلان اے تو بڑا obvious تھا کہ وہ الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور بطور جماعت جتنی سیٹیں جیت سکے تو وہ پارلیمنٹ میں جا کر اپنا وہ ریپریزنٹیشن ان کی ہوگی۔ اچھا، وہ جب ان کے سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی الیکشن کو ختم کر دیا، ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا، تو اس کے بعد اسی دن جیسے انہوں نے پارٹی ٹکٹ جمع کروانے تھے ان کے کینڈیڈیٹس نے، تو وہ جب پارٹی ٹکٹ جمع کروانے گئے انہوں نے ایک اور پارٹی سے اتحاد کر لیا، تحریک انصاف نظریاتی سے۔ تو وہ بھی ان کا پلان اسی دن فیل ہو گیا جب تحریک انصاف نظریاتی کے جو چیئرمین تھے انہوں نے اس بارے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اچھا جی، پلان اے اور پلان بی دونوں ان کو جب ناکام ہوئے تو اس وقت ہماری پھر جو یہ موجودہ صورتحال ہے اس میں ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کچھ پی ٹی آئی کے جو ٹاپ رینک جو ان کے وکلا ہیں جو کہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو ان کے کیسز کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ابھی آپشنز موجود ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے ہماری پارٹی وہ الیکشن جو ہے اس کو کنٹیسٹ کرے اور پارلیمنٹ میں جا سکے۔ اچھا جی، اس بارے میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں جناب عمران خان صاحب، پچھلے دنوں انہوں نے جیل میں جب کچھ صحافیوں سے ملاقات کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا جی ہمارے پاس پلان سی موجود ہے لیکن ہم اس کو ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ان پہ پریشر آتا ہے جی کہ بڑے وہ ڈالے آ جاتے ہیں تو لوگوں کو وہ مجبور ہوتا ہے لوگ۔ پلان سی بیسیکلی ان کے بارے میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک اس میں ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے جیسی ہماری ان کے وکلا سے ڈسکشن ہوئی ہے اور جو ہمیں وہ انفارمیشن آئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو بعد میں چیئرمین منتخب ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان، وہ ان دنوں بڑے ایکٹیو ہیں اور ایکٹیو اس طرح سے ہیں کہ وہ پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں ان سے بھی ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کوئی وہ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے تحریک انصاف کے جو ابھی امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں گرچہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، اس بارے بڑی صورتحال جب انہوں نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو تحریک انصاف ہے اس وقت اس سے بلے کا نشان چھینا گیا ہے، اس کے پارٹی الیکشن کالعدم ہوئے ہیں لیکن وہ بطور ایک جماعت الیکشن کمیشن میں سٹل رجسٹرڈ ہے۔ اچھا جی، اس پر جب ایک جماعت کے طور پر وہ رجسٹرڈ ہے تو انہوں نے اس کہا جی کہ کس طرح سے ہمارے جو آزاد امیدوار ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جب وہ جیتیں گے تو جیت کے کس طرح سے پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو یہ خبر بتائیں کہ تحریک انصاف نے دوبارہ جو ہے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کرنا شروع کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ گرچہ الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں لیکن آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس دوران بھی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ان کا انعقاد کروا سکتے ہیں۔ اب اگر ان کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو بلے کا نشان دوبارہ مل جائے گا، لیکن یہ صورتحال بڑی کلیئر ہے کہ اگر ان کو اس موقع پر بلے کا نشان ملتا ہے تو وہ جو ان کے کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا، وہ اسی الیکشن سمبل پر اپنا الیکشن لڑیں گے جو کہ ان کو ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ الاٹ کیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف ابھی چاہتی ہے جی کہ ہم جلد از جلد اپنے الیکشن کروائیں، ایک نیا ان کا چیئرمین ہو، باقی باڈی ہو، تاکہ ان کے وہ جو
कैंडिडेट्स हैं जो जीते उनको दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जब उनसे बात हुई तो बेसिकली ये इनका जो प्लान सी है उसका ये हिस्सा है कि जो जो उनके कैंडिडेट इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, जब उन्होंने अपने नॉमिनेशन दाखिल करवाए थे तो उसमें भी एक उस वक्त बताया जाता है आरओ को कि हम फलां पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो उसके बाद जारी बात है जिसको फिर टिकट मिले तो वो पार्टी का एक उम्मीदवार डिक्लेयर होता है। लेकिन चूंकि इनके इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं और अभी वो सारे अपनी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे उनको हर एक को अपना अपना निशान अलाट हुआ, किसी को बोतल हुई, किसी को मलका, किसी को बैंगन, किसी को जूता, कोई चिमटा, कोई बाजे पे इलेक्शन लड़ रहा है, किसी को पंगूड़ा मिल गया है। जारी बात है इन इलेक्शन पे वो सिंबल पे वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो उसमें इनके लिए एक जो रास्ता है जो इनके लिए बड़ी ही एक होपफुल किस्म की वो एक चीज़ निकली है, उसमें यह है कि जब इनके मेंबर्स जो हैं, प्राइवेट जो मेंबर्स हैं, एक तो ये कि उन्होंने जब एक पहले डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि जी हम फलां पार्टी की तरफ से आएंगे, और इलेक्शन जीत कर जब ये अपना 3 दिन के अंदर वो एक डिक्लेरेशन दे देंगे कि हम फलां पार्टी में शामिल हैं, हो सकते हैं, या फलां पार्टी या अपने जमात पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो फिर बाकायदा तौर पर पीटीआई का हिस्सा बन जाएंगे। और ये उसमें एक रास्ता मिला है उनको, जैसा उनके वकला का वो कहना है कि आर्टिकल 63A(2) जो है उसमें उनको एक रास्ता मौजूद है कि वो पार्लिमानी जो सियासत है, जो पार्लिमानी ग्रुप है जो बेसिकली पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन करता है किसी जमात की, उसका हिस्सा बनेंगे और तहरीक इंसाफ के साथ ही जुड़े रहेंगे। अच्छा, ऐसी जो सूरत हाल है इसमें यह है कि जो उनके प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जो तो फौरी तौर पर ज्वाइन कर लेंगे अपनी जमात को, जारी बात है। उसके बाद फिर जैसे होता है 63A में कि उन पे डिफेक्शन जो क्लाज है वो फिर लागू हो जाती है कि अगर वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है उसको वोट नहीं करेंगे, मनी बिल की खिलाफ वर्जी करेंगे, या उसमें यह है कि वो पार्टी को छोड़ देंगे, तो फिर वो नाअहल हो जाते हैं। अगर ये सूरत हाल मेंटेन रहती है तो पीटीआई इस जो प्लान है इस पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है कि जी हमारे कैंडिडेट इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन लड़ें, और इलेक्शन लड़ने के बाद वो जो है बाकायदा तौर पर पार्टी को ज्वाइन करें। तो अगर ऐसी सूरत हाल में वो कामयाब हो जाते हैं तो बहुत सारे जो मेंबर्स हैं फिर वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और इस सूरत में तहरीक इंसाफ बतौर एक पार्टी, एक पार्लिमानी ग्रुप, वो पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये बात तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त होपफुल है और इसी पे ही बेसिकली वो काम कर रहे हैं। जैसे हमने अपने पिछले वीलॉग में भी ये डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट से तो उनकी पिटीशन खारिज हो चुकी है और इस वक्त तक उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी दाखिल नहीं की। होता तो यूं है कि जब इतने इम्पोर्टेंट मैटर होते हैं, अर्जेंट नोयत के वो मामला होते हैं, उसमें जो जमातें हैं वो फौरी तौर पर अदालत से रजू करती हैं, लेकिन अभी तक वो उन्होंने अदालत से रजू नहीं किया। तो जारी बात है जी इसमें अभी वो अपने एक प्लान के तहत चल रहे हैं जो उसको प्लान सी कहते हैं। ये प्लान सी का उनका ये हिस्सा है जिस पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में जाएं, और जो जीते वो फौरी तौर पर फिर एक डिक्लेरेशन दे दें, पार्टी को ज्वाइन कर लें ताकि वो पार्टी का हिस्सा बन सके। और जिसके बाद फिर दूसरा मरहला जो आगे आएगा उस पर यह है कि वो जो उनकी रिजर्व सीट्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं जो उनको मिलना चाहिए, जारी बात उनके लिए एक उनको फिर अलग से एक लीगल बैटल में जाना पड़ेगा। तो उसमें यह है कि उनको काफ़ी चांस है कि रिजर्व सीट्स मिल जाए और अदालत से उनको रिलीफ मिल जाए। सूरत हाल देखी जाए तो ये जो इनका प्लान है इसमें उनको आइन और कानून ने एक रास्ता दे दिया है जिसके तहत अब वो दोबारा जो है अपनी एक सियासत जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो जब हमारे इनसे जो वकला थे उनसे जब ये बात हुई तो वो कह रहे थे जी कि हमारे लिए ये बहुत ही होपफुल चीज़ है कि हम दोबारा से जो है वो पार्लियामेंट में इन हो सके। तो जारी बात है जी अगर तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जीते हैं उन पर कोई प्रेशर आता है और या वो दूसरी जमातों को, जैसे कि अभी IPPs के
चौहान साहब कह रहे थे जी कि ये बहुत सारे लोग आईपीपी को ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले इन आज़ाद उम्मीदवारों पे अपनी नज़रें जमाए बैठे हैं, या आप ये कह लें कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो भी इस पे अपनी नज़र जमा के बैठे जी कि इनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीतते हैं तो उसके बाद हमें ज्वाइन करें। तो अगर जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं ये उनसे फौरी तौर पर डिक्लेरेशन ले लेते हैं, या उन्होंने एक और प्लान इसमें सोचा हुआ है कि जो अपने उम्मीदवारों से पहले ही उन्होंने डिक्लेरेशन वो साइन करवाने का सोच रहे हैं कि जो जो जीतेगा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन में वो डिक्लेरेशन दे देंगे, ताकि उन पार्लियामेंट जो उनके मेंबरान हैं जीतने वाले उनकी वो मंडी ना लग सके। तो ये बात जो है इसमें वो बहुत ही होपफुल है तहरीक इंसाफ, और इसमें चूंकि तहरीक इंसाफ को एक आइन और कानून के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत एक रास्ता भी मिल चुका है, और इलेक्शन कमीशन ने भी एक तरह से उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप अपने इलेक्शन अभी करवा सकते हैं, बल्ले का निशान भी ले सकते हैं। लेकिन इवन देन अगर ये चीज़ें ना हो, जब तक ये इलेक्शन होगा, तो फिर भी तहरीक इंसाफ जो है एक जो जमात के तौर पर उसकी इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन स्टिल मौजूद है, और इसमें यह है कि तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है। तो बेसिकली जो तहरीक इंसाफ की जानिब से प्लान सी का डिस्कस किया जा रहा है, ये प्लान सी का ही एक हिस्सा है, और इस पर अभी जो है उनकी वो सारा दारोमदार है उनकी कोशिशों का, वो उस पर सोच रहे हैं। तो लगता ये है कि इसमें तहरीक इंसाफ को कुछ जो है एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि वो दोबारा से जो है एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उसमें दाखिल हो सकते हैं। तो ये तो थी आज तक की डेवलपमेंट नाजरीन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जिसके बारे में प्लान सी के बारे में कहा जा रहा है, और जिस पर वो अपना अभी सारा मरकूज किए हुए हैं, अपनी सारी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। तो इसके बाद जो डेवलपमेंट होती है इसके साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।